Welcome back, everybody. So, hello, this is me, Ashish Kumar. This is our second session on linear arrangement. I'm live on YouTube Unacademy platform, CAT platform. So, I hope all of you are doing great. First of all, what I would request, please keep a notebook and a pen, because what I feel some of you don't use this notebook and pen to solve the question, and it is very difficult. Let me say it is next to impossible to recreate the entire picture in your mind. In quant, it is somehow possible because the calculations involve 2 to 3 steps. But in logical reasoning, it takes almost 10 to 12 steps to reach the answer, which is very difficult to be memorized in the short span of time. So, what I would request, I'll give you 30 minutes. Please get up. If you don't have a notebook and a pen, take it, because since this is the second lecture on linear arrangement, today I have a collection of some good questions sent to me by you students, and there were many questions that were sent, so I have selected a few of them which are really good. So we'll proceed with the session, in fact, and I have to. There is one more question regarding the speed to solve the question. Regarding that, I'll discuss later on in the class. Okay, let's move ahead. This is me, Ashish Kumar. Now, most of you know me. Being mechanical, I have got experience of 8 years. I'm into this professional CAT coaching as a LRDI expert since last 5 years. I myself have a multiple times 99 percentile scorer in my expertise. Okay, the last attempt of mine was in 2018, in where I scored 99.87 percentile in LRDI. Okay, so I can take you through. I can really help you to get grasp over the concepts of LRDI. But the main work, the main hard work, has to come from your side. My role is limited to 15 to 20% of your preparation. Yours is 80 to 85%. And please keep in mind, I have told you earlier as well, this, hang on, please. Let's go back to the slide. Let me change it to the pen. I have told you earlier very clearly that what is to do. The ratio should be 1:4. Don't keep on watching the things here and there. You need to act on it. You need to work on it. ठीक है? 80% of the effort should be on doing, not on watching. 20% should be on watching. Great. Keep this in mind. You have some 6 months left, which is cut to cut time. You need actually, an average student needs 6 months to prepare for CAT, and you are left with roughly 6 months. ठीक है? So, now, prior to the Sun Academy, I was working with Time Institute since last 5 years, which is a quite reputed institute. I was working with Time Pune, so most of you students from Pune were in Time know me very well because I was quite a face over there. One of my student in this year scored 99.97 percentile, and every year I have a student who scores more than 99.9 percentile, and this year I'm looking for some of you who can cross this mark for me. I never had a student who got 100 percentile. This is the best that I have. So I want someone who can score 100 percentile for me. I'll give my best and expect best from him. Okay, so you can follow me on, you can, if you like it, you can subscribe the channel. I will be live daily from 4:30 to 6. I will be covering every single topic of logical reasoning and data interpretation. I will be taking you to the most difficult sets and how to approach them. You just need to follow. But yes, this. Please follow this. This is the basic mantra that I follow and that I deliver. Okay. But there is one more thing to share. As I said, you don't watch too much. Why? Because now initially what happened 10 to 15 years before, there was lack of quality content. I mean, the quality content was restricted to few areas. Like for CAT, you had to go to Hyderabad or Bangalore some 10 to 15 years back. For JE, you had to move to Kota, if you remember. UPSC के लिए students used to go this Delhi.
But now, the best thing with Unacademy is कि Unacademy by the with the help of technology has brought everything to your reach. Everything. We have launched the courses in CAT. We have launched the courses in JE. We have launched the courses in let me say UPSC, and we have all the top educators of the country teaching to you in a nominal price with your convenience. Now the materials are accessible to you throughout the day 24/7 at a nominal price. Isn't that great? Think about it. And there is the now lot of quality content spread over internet. So there is a paradigm shift. What to watch, what not to watch. Now most of them are good on an academic platform as well. You have many options. I am one of them. I do teach LRDI. Along with me, there are 10 at least more educators who are very talented, who teach the entire LRDI thing. Now, how to do, how to figure out. So, every faculty has its own style of delivery, which may or may not suit to a group of students, may or may not suit to other group of students. So, figure out your kind of faculty. जिसकी बातें आपको सिंपल लगती है, समझ में आती है, फॉलो एनीवन, यू विल रीच your goal. ठीक है? So I would suggest you to visit Unacademy once, Unacademy profile once. I am here on the behalf of Unacademy on YouTube every day from 4:30 to 6 teaching you CAT every single concept. ठीक है? चलो moving ahead. This is our Telegram app. Download this and you can use this link to subscribe it. There we provide daily notes and we provide the lectures that are conducted. Everything, you have lots of content to access. I would suggest you to subscribe this as well. Now let us talk a little about an academy subscription. It is a boss in preparation. If you are a serious candidate, you should look over it because you'll get much more content in the price of nuts. If you are going with a 1 month subscription, you will get it for 3,500 per month. आपका सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा टाइम के लिए इंक्रीज करेगा, डिस्काउंट वुड बी दैट मच. ठीक है. What I suggest, if you are a final year student, go with this package. And if you are a working professional, go with this package. ठीक है. Now this is my referral code, CAT plus. Now what happens ki you will get 10% off. The maximum of that you can get is 10%, and every faculty has his or her code. This is my code. This means applying this means you want a special attention from my side. Great. So you can apply this to get 10% off. So this would be the final price for a year package, and this would be the final price for 2 years package. Great. So please have a look over it. If you're a serious candidate now, you should go with it. Now I'll discuss the benefits of subscription later on in the class. Let's move to the first question. Now this is the first question. In last class of linear arrangement, what we did in the last class now, we started the logical reasoning thing and we did the basics of linear arrangement, the lecture of which is named L1, introduction of linear arrangement, and it is on YouTube. Intro of linear arrangement. If you haven't watched that, please go and watch. ठीक है, we have discussed all the basics, languages वगैरह in this lecture. Is named as L1. This is the L2. Some problems on linear arrangement, and these are the collection of problems from your side. Most of you have sent me the questions. I have filtered a few of them, and today we'll be discussing those. Okay. Now these questions are good questions. So let's move ahead. This is the first question. So what I'll do now, I'll give you time of let me say 5 minutes to solve this question. A maximum 5 minutes. Attempt the question. We'll start discussing this question after 5 minutes.
seven friends A to G means A B C D E F G are sitting on a bench with no two adjacent persons facing the same direction. Very good. The following information is known about them. A sits third to the right of D, who faces north, but none of them is at any end. G is 4 places away to D. F sits second to the left of E, who is not adjacent to B. Great. Attempt the question. That is the question you need to answer. Who is second to the right of A? Please bear with me the writing. I'm not good at writing on this digital pad. One more minute, the last minute. Actually, this question was an easy one. If you have proper understanding of linear arrangement, you should have done this question till now. Chalo, I hope most of you must have solved this question by now. The time is almost up. Yep. Chalo, we'll discuss this question. ठीक है. Now there are 7 friends A to G are sitting on a bench with no two adjacent persons facing the same direction. Adjacent persons मतलब क्या? जो लोग neighbors है, जो लोग साथ में बैठे हैं, they are not facing the same direction. Let me change the color of the pen to white. White, ठीक है. चलो. So these are my. अच्छा रेड ही अच्छा था क्या? नहीं white ठीक है यार. White is good. Red is danger का sign. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. Very awesome. So इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बेटा? No two adjacent persons
facing the same direction. इसका मतलब यहां पर जो बैठा है अगर वो नॉर्थ में देख रहा है तो ये साउथ में, ये नॉर्थ में, ये साउथ में, ये नॉर्थ में, ये साउथ में, ये नॉर्थ में. ठीक है. अच्छा, नॉर्थ साउथ का डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? कोई नॉर्थ में देख रहा है, कोई साउथ में देख रहा है. द ओनली डिफरेंस इज द डायरेक्शन सेंस. इफ somebody is watching towards the north na, this is his right and this is his left. But if the same person is watching towards south, this becomes his right and this becomes his left. आप खुद को अज्यूम कर लो यहाँ पे, अब काफी इजी हो जाता है. कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, बट अगर आप खुद को अज्यूम करोगे ना कि आप आगे देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो आपका राइट हैंड इस तरफ है, सो दिस इज योर राइट. लेफ्ट हैंड इस तरफ है तो दिस इज योर लेफ्ट. और अगर आप नीचे देख रहे हो तो आपका राइट हैंड इस तरफ है. अकॉर्डिंगली यू कैन यहाँ जस्टिफाई हियर एज वेल, कोई दिक्कत नहीं. बट सिंस लॉजिकल रीजनिंग इज सॉल्व्ड इन पिक्चर्स, इट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज. आपको सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर करने हैं. ग्रेट. तो अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि एडजेसेंट पर्सन्स आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. बट हमने क्या किया ना, इसमें एक छोटा सा 4 5 6 7, इसमें हमने फर्स्ट वाले को नॉर्थ अज्यूम कर लिया है. यस, ये फर्स्ट वाला नॉर्थ है, ये कैसे पता? ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है. फर्स्ट वाला साउथ भी हो सकता है. यस, तो वी कैनॉट इग्नोर दिस पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट अलाउड टू इग्नोर दिस पॉसिबिलिटी. तो फर्स्ट वन बंदा साउथ देख रहा है, देन सेकेंड वन वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन साउथ, then north, then south, then north, and then these are the two possible cases for direction sense. This is what we are getting from general information. ठीक है. आगे, A sits third to the right of D, who faces north. Who मतलब कौन? अगेन ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. हु जस्ट पहले को कनेक्ट करता है, मतलब D faces north and A is third to the right of D and D faces north. Great. But none of them is at any end, neither A nor D. अब इस स्टेटमेंट से क्या क्या डेटा मिल रहा है आपको? D नॉर्थ में फेस कर रहा है, D A जो है D के थर्ड टू द राइट है, और A और D में कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है. एक काम करते हैं ना, इसको नेम कर देते हैं. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन. ठीक है. नीचे के लिए भी ये वैलिड है, आप खुद ब खुद वो आइडिया लगा लेना. ग्रेट. चलो, तो डी फेसेस नॉर्थ. अब इस सिनारियो को फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस है. इस सिनारियो को दोनों केसेस में फिट करने की कोशिश करते हैं. ग्रेट. तो डी फेसेस नॉर्थ, so D could be at 1, D could be at 3, D could be at 5, D could be at 7. हम ये भी ध्यान में रखेंगे, none of them is sitting at any end. मतलब D cannot be at 1, D can be at 3. yes, अगर D को 3 पे रखा तो A किधर हो जाएगा बेटा? थर्ड टू द राइट. so इसका राइट इस डायरेक्शन में है, 4 5 के अराउंड. so थर्ड पे अगर D को रखा तो A would be at 6, थर्ड टू द राइट मतलब तीसरा बंदा. so this is one case. और अगर D को 5 पे रखा तो फिर यू कैनॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू प्लेस A. एक ही पॉसिबिलिटी है. DA. इस वाले केस में D कैन बी एट 2, D कैन बी एट 4, D कैन बी एट 6, बट D को 6 पे नहीं पुट कर सकते, A के लिए स्पेस नहीं है. D को 4 पे नहीं पुट कर सकते, A कॉर्नर पे जाएगा एंड A कैनॉट बी एट एनी ऑफ द एंड. एक ही केस आपके पास, D 1 2 3, A would be here. So we used this clue entirely as the first clue. सबसे पहले हमने इसको यूज किया. कभी कभी क्लूज ऑर्डर में सेट होते हैं, कभी कभी जम्बल्ड होते हैं. नाउ सेकंड, G is 4 places away to D, तो it could be away from D on the any side. तो अभी D के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, बट लेफ्ट में स्पेस है नहीं फर्स्ट केस में. So G has to be here, और इस केस में भी G has to be here. ठीक है. Only possibility.
F is second to the left of E who is not adjacent to B. F is second to the left of E who is not adjacent to B. Great. तो F क्या है ना बेटा, मेरे को F भी नहीं पता कहां पर है, मेरे को ये भी नहीं पता E कहां पर है, मेरे को B भी नहीं मिला, ठीक है. बट दिस इज द लास्ट क्लू दैट वी आर लेफ्ट विद. तो विदाउट एनी हेजिटेशन let's start framing out the possibilities. Logical reasoning is a game of possibilities. E कहां हो सकता है, F E के सेकंड टू द लेफ्ट है, E कहां हो सकता है. फर्स्ट केस में E को 5 पे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं. E को 5 पे रखा तो F सेकंड टू द लेफ्ट, F has to be at 3, which is not possible. We already have D over here. Now अगर हमने E को 4 पे रखा तो left now, since one who is sitting at 4 is facing towards south, this becomes the left and F would be at A then. So again this is not possible. So E cannot be at 4. E को 2 पे रखा तो yes, F can be at 4 और E को 1 पे नहीं रख सकते हैं. We won't be able to place F. So एक ही केस है मेरे पास, E has to be here, F has to be here. And इसका second statement, who is not adjacent to B? So E is not adjacent to B. So B cannot be here at the first place adjacent to B. B has to be here. What is the left out? C. ठीक है. So this is one potential answer. इसका मतलब ये नहीं है कि we will ignore this. We have to deal with this as well. There can be more than one potential answer. Yes, there can be more than one potential answers. कभी कभी 2, 3, 4 आंसर होते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज. अब अकॉर्डिंगली किस पॉसिबिलिटी से आंसर देना है ये क्वेश्चन से क्लियर होता है कि वो किस पॉसिबिलिटी से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है. ग्रेट. चलो, F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E. अगेन E के लिए चेक करते हैं. E को यहां नहीं पुट कर सकते हैं, क्यों, F के लिए स्पेस नहीं होगा, दिस वुड बी लेफ्ट. देन E को यहां पे नहीं प्लेस कर सकते 4 पे, क्यों, क्योंकि F को फिर 2 पे होना पड़ेगा, वहां पे D ऑलरेडी है. E को यहां पे नहीं पुट कर सकते, कहां, थर्ड पे, क्योंकि फिर A पे F को आना चाहिए था, विच इज नॉट पॉसिबल. एक ही पॉसिबिलिटी है, E वुड बी हियर, F वुड बी हियर. एंड इसका सेकंड पार्ट क्या है, हु इज नॉट एडजेसेंट टू A, मतलब E इज नॉट एडजेसेंट, सॉरी, हु इज नॉट एडजेसेंट टू B, मतलब क्या बेटा, E इज नॉट एडजेसेंट टू B. तो यहां पे वैसे भी वो प्रॉब्लम नहीं है, E के बगल में तो D है ना. सो B कुड बी हियर और हियर, एनीवेयर. सो वी आर लेफ्ट विथ B. अगर B यहां पर है तो C यहां पर हो जाएगा, लेकिन B अगर यहां पर है तो C यहां पर हो जाएगा. सो ये दोनों भी आंसर जस्टिफाई होते हैं. एक पॉसिबिलिटी यहां से और 2 पॉसिबिलिटी यहां से. ठीक है. सो इस क्वेश्चन के टोटल कितने आंसर्स है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. एक से ज्यादा आंसर रीजनिंग में बहुत बार मिलेगा आपको. यू आर नॉट अलाउड टू इग्नोर एनी ऑफ द. इसको एक क्वेश्चन हो भी सकता था क्या कि हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर, सो आंसर वुड हैव बीन 3. अभी आपसे क्या पूछा बेटा, अभी आपसे पूछा है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ A. अब सेकंड टू द राइट ऑफ A, देखो अब आपको आंसर देने के लिए ना दोनों भी सारे केसेस देखने पड़ेंगे. इस वाले केस में A का राइट, A फेसिंग साउथ, राइट इज F, तो इस वाले में F इज द आंसर, और इस वाले में A राइट, अगेन F इज द आंसर. दोनों भी केसेस में आंसर F आ रहा है, हेंस द आंसर शुड बी F. ये क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपसे पूछा था, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A. सो नन ऑफ दीज, इट इज F. ठीक है. हाउ मेनी पर्सन्स फेस नॉर्थ, ये फर्स्ट क्वेश्चन. अब अगर बात करें तो इस वाले में कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 1 2 3 4. इस वाले में 1 2, सॉरी इस वाले में 1 2 3 4, इस वाले में 1 2 3. सो आंसर इज इधर 3 और 4. सो अगर ये मल्टीपल चॉइस में होगा क्वेश्चन जनरली, so it should be cannot be determined one of the options, और आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा 3 और 4. ठीक है. 4 ऑप्शंस क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, 3 4, 3 और 4 एंड CBD. इन दिस केस यू विल मार्क 3 और 4, और अगर 3 और 4 भी मिसिंग है, ऐसा है 2 3 4 CBD, तो CBD वुड बी द आंसर. आई होप आपको क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं तो आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना कि क्या है एग्जैक्टली. Now B is adjacent to A. देखो if से क्लियर हो गया ना. if क्यों, if का मतलब होता है अगर B is adjacent to A, मतलब कभी adjacent हो भी सकता है, कभी adjacent नहीं भी हो सकता है. यहां से भी क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन के there were more than one possibilities.
इफ बी इज एडजेसेंट टू ए देन हु इज एट द एंड। ठीक है, फिगर आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बी एडजेसेंट ए इस केस में है, हाँ है, तो कॉर्नर पे कौन है, सी और जी है। बी एडजेसेंट टू ए यहां है, ए यहां पर है, हो भी सकता है यहाँ पे देखो बी एडजेसेंट हो सकता है ए के, सी भी हो सकता है ए के, लेकिन जब बी ए के एडजेसेंट है तो कॉर्नर पे कौन आ जाएगा, सी और ई। सो कॉर्नर पे कौन कौन है, व्हेन बी इज एडजेसेंट टू ए कॉर्नर पे है सी जी ई, सी जी ई है कॉर्नर पे। ऑप्शंस देखते हैं, तीनों भी है सी जी ई इसमें, सो आंसर शुड बी कैनॉट बी डिटरमाइंड। B and C face the same direction, true or false? First case, B and C दोनों नॉर्थ में देख रहे हैं, yes, in first case it is true. Second, B and C नहीं, they are facing the opposite direction. So एक केस में they are the statement is true, दूसरे केस में statement is false. आप आंसर क्या मार्क करोगे? I see. आंसर would be false. क्यों? बिकॉज अगर आप आंसर ट्रू मार्क करते हो तो ट्रू का मतलब क्या है, अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल केसेस। एक स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, इफ इट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल केसेस। इमेजिन कि एक रूम में देर आर 10 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स, और 100 में ना 99 स्टूडेंट्स के पास पेन है, एक स्टूडेंट के पास पेन नहीं है। ग्रेट। और आपसे किसी ने पूछा कि सारे स्टूडेंट्स के पास पेन है क्या, डू एवरीबडी हैज अ पेन, यू सेड कि यस एवरीबडी हैज अ पेन एंड यू मेड दिस कंक्लूजन दैट एवरीबडी हैज अ पेन, बट व्हेन चेक्ड आउट फिजिकली वन ऑफ देम डिडंट हैड द पेन, सो योर कंक्लूजन इज टेक्निकली नॉट ट्रू। यू सेड कि यस एवरीबडी हैज पेन, मतलब एवरी सिंगल पर्सन शुड हैव पेन। वही केस यहाँ है, अगर ट्रू होना है तो इट शुड बी ट्रू ऑलवेज, एल्स इट इज नॉट ट्रू। सो बाय दिस लॉजिक वी विल मार्क द आंसर एज फॉल्स। सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दीज लॉजिक्स एज वेल, नहीं तो करेक्ट सॉल्व करने के बाद भी अगेन यू विल मार्क द आंसर्स रॉन्ग। डोंट डू दिस। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू द सेकंड क्वेश्चन फॉरवर्डेड बाय यू। Attempt this question. I'll give you again 5 minutes to solve this question. Actually, this question should be given more time, but I'll give you 5 minutes. Solve this. I have 3 more minutes.
और क्या क्या क्वेश्चंस भेजे हैं आप लोगों ने? इसमें क्वेश्चन आप ले लो ये। Who is immediate left of G? You have 2 more minutes. Chalo. So let's attempt this question together. I believe most of you must have solved this. हाँ, देखो. Again, there are 7 persons A to G, मतलब A, B, C, D, E, F, G. They are sitting in a row. Some of them are facing south and some of them are facing north. ठीक है, ये R है, ARE. Typing error. This is R. Some of them are facing north. The following information is given on them. अब आपको ये नहीं पता कितने लोग साउथ में देख रहे हैं, कितने लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, but yes, there are 7 of them. F is 3 places away from D and it's second to the right of E. Let's start. F is 3 places away from D. तो इसका मतलब क्या है बेटा? F is 3 places. F is 3 places away from D. और मैंने आपको पहले बोला कि आपको पॉसिबिलिटीज दिखनी चाहिए. एक केस ये भी है, इसमें भी F is 3 places away from D, towards the left, towards the right तो mentioned है नहीं. It has to be like this as well. And is second to the right of E. अब आया पिक्चर में and मतलब किसकी बात हो रही है? and मतलब बात हो रही है F की. and पहले वाले को कनेक्ट करता है. So F is second to the right of E.
अच्छा बेटा एक बात बताओ, F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E का एक मतलब ये भी है ना कि E इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम F। यस, ठीक है। तो अभी कैसा है कि ना हमें ना ये पता नहीं है F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन, तो हम लेफ्ट और राइट डिटरमाइन नहीं कर सकते है ना, सो दैट्स द प्रॉब्लम। बट यस, वी कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट F एंड E आर 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। इनमें ना 2 प्लेसेस दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। हु इज फेसिंग साउथ, मतलब E इज फेसिंग साउथ। हु मतलब किसको कनेक्ट कर रहा है छोटू? हु मतलब E को, सो E इज फेसिंग साउथ। D is at an end, एक important clue. This is my first clue to start with. D is at an end, मतलब इसमें D राइट कॉर्नर में होगा, इस वाले कॉर्नर में, तो उसके पीछे इधर 6 लोग और होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इस वाले केस में भी D को कॉर्नर पे होना है, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। So D is at an end. This is my second clue that we used. E and D are not adjacent to each other. Oh, yes. अभी देखो, F is 2 places. F is second to the right of E, मतलब F and D are 2 places away from each other. So E क्या हो सकता था इस केस में? यहां हो सकता था E, या फिर E यहां हो सकता था। बट यहां देखो बेटा क्या गिवन है, E and D are not adjacent to each other. So F से 2 प्लेस अवे, this is not the place. It has to be this. E और D साथ में नहीं बैठेंगे। और सिमिलरली इधर ये E faces साउथ, E का डायरेक्शन आपको गिवन है। अब देखो, जब E साउथ में फेस कर रहा है ना, तो एक स्टेटमेंट पहले क्या था, F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। इस वाले केस में E का राइट इधर जा रहा है, इस तरफ, F लेफ्ट में है। सो ये वाला केस कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, द केस इज एलिमिनेटेड, क्योंकि F इज नॉट टू द राइट ऑफ E, F इज टू द लेफ्ट ऑफ E। इस वाले केस में F इज टू द राइट ऑफ E। सो यस, दिस इज अ पॉसिबल केस, इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट राइट नाउ क्या, दिस इज माई थर्ड क्लू आई यूज्ड। E and D are not adjacent to each other and are facing different directions. This is the third clue. E and D are facing different directions, मतलब E अगर साउथ देख रहा है तो D साउथ यस नहीं देखेगा, D has to face नॉर्थ, ठीक है। एंड एक स्टेटमेंट हमने ये भी यूज कर लिया, थर्ड, एंड दिस इज माई, ये हमने यूज कर लिया ऑलरेडी, ऑल दिस इज यूज्ड एज द सेकेंड वन इटसेल्फ। चलो अब आते हैं आगे, A is to the immediate left of F. A is to the immediate left of F. So F यहां पर है, A could be here or here, anywhere, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ना ये वाली पॉसिबिलिटी इरेजर लेके ये सब कुछ निकाल देता हूं, ठीक है। ये केस तो वैसे भी एलिमिनेट हो चुका है। आपको वापस देखना है तो आप YouTube के हिस्ट्री में देख सकते हैं, ये रहता है मेरा, हमारे चैनल पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल है। क्या प्रॉब्लम है यार, ये टेक्निकल इशू है थोड़ा। आ गया फाइनली पेन, फाइनली। चलो नाउ व्हाट वेयर वी वर, A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। F का डायरेक्शन पता नहीं है, तो ये भी लेफ्ट हो सकता है और ये भी लेफ्ट हो सकता है। यस, दोनों की साइड लेफ्ट हो सकता है। अगेन वी हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज। 1 2 3 4 5 6 7, D यहां पर मिला, F यहां पर है और E यहां पर है फेसिंग साउथ, एंड A could be here, A could be here. You are not allowed to ignore any of the possibilities. But इस वाले केस में A would be to the left of F only when F is facing towards north, और इस वाले में F has to face towards south। इससे दोनों की एक डिफरेंट डायरेक्शन मिल गई F की दोनों केसेस में। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लू बाय क्लू। B is adjacent to neither E nor A, मतलब B E के बगल में भी नहीं है और A के बगल में भी, तो आप यहां पर B को यहां प्लेस नहीं कर सकते, B को यहां प्लेस नहीं कर सकते, और B को यहां भी नहीं कर सकते, A के बगल में भी। अगेन द केस इज एलिमिनेटेड।
तो देखो केसेस पे केसेस आपको बनाने हैं। वी स्टार्टेड विथ 2 केस जिसमें एक एलिमिनेट हो गया, दूसरे वाले से वापस 2 केसेस निकले, उसमें से भी एक एलिमिनेट हो गया, एंड दिस केस is still standing strong, तो we have to follow this one now. तो अगेन बी क्या था मेरा बेटा, बी था क्या था कि यहाँ पढ़ा था हमने, बी इज एडजेसेंट टू नेदर इन और ए, ठीक है, मतलब इस केस में बी विल नॉट बी हियर, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूविंग अहेड, ये यूज कर लिया हमने। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, A and F face different directions. A and F face different directions. आप देखोगे अगर, ये तो हमने ये this was my 4th clue, ठीक है, and this could be well my 5th clue. A and F are different directions, मतलब इन दोनों का facing different है, F south तो A must be north. होगा चलो now अब इस पे आ सकते हो वापस, this is better to apply now. C is second to the left of A. My 6th clue to apply this one. A is over here, so second to the left is this. C would be here. ठीक है, चलो एंड एक चीज देख लो आप, बच गया है मेरे पास B, और क्या बच गया मेरे पास E, F नहीं, क्या बच गया मेरे पास G, ठीक है। तो B यहां पर नहीं है, ऑलरेडी मिल चुका है मुझे, करेक्ट, तो B के लिए एक ही ऑप्शन है ये, एंड हियर वी वुड हैव G, ठीक है। G faces north, G has to face north। अभी आपको B और C का डायरेक्शन नहीं मिला, लेकिन आपको एक क्लू भी तो है, G is to the left of B, G जो है B के लेफ्ट में है, is only possible when B is facing towards south, and to the right of C is again only possible G C के राइट में कब होगा, when C is facing towards north। So this will is my final answer. This is my final answer. Now based on this, what was the question? Who is to the immediate left of G? So it is E. Answer to this question is E. And then you can answer any of the questions. कोई भी question हो, arrangement is important. ठीक है, चलो let's move to the next question quickly. Oh, a very good question. A question that is asked in CAT some 4 to 5 years back. A very good one. Attempt this question. I'll give again 5 minutes for this question. Actually, this question deserves more time. I'll give you 5 minutes for this.
I'll give you 4 more minutes. Then I'll start discussing this question. Hope this lockdown ends soon. Till then, stay safe. This is the year 2020 is the year to survive. Let me see the time. The last minute. 1 more minute. Chalo, boys. Let's have a look over this question. Now, this really was a good question. It was not that simple. Although अगर आपने properly अगर statement read करके slowly आपको लगता है ना, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्पीड आ जाते हैं स्पीड पे। एक मिनट, एक क्वेश्चन था मेरे से, मैंने आपको बोला था स्पीड को लेके क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा था, शायद द नेम ऑफ द स्टूडेंट वाज, आई कुड रिमेम्बर, it was Sharad Thorat. So Sharad, if you are listening, so this is the answer to your question, Sharad Thorat. आपने पूछा था सर, what should be the time involved in solving a question in examination? So बेटा, actually ना, एक क्वेश्चन को अभी जैसे सेड कि आपको टाइम लगता है सॉल्व करने में, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग ना, you should not take care of the time limit. नहीं, your target should be to solve the question सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर एग्जामिनेशन में बात करोगे तो क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड इन 8 to 10 minutes. If you have started to solve a question, किसी सेट को आपने पकड़ लिया, bang on, it should be solved in 8 to 10 minutes. ट्रेनिंग फेज में ना, you could spend 30 to 40 minutes as well. Yes, एक क्वेश्चन में, but you should devote the quality time thinking over the question for 30 to 40 minutes. आप अगर ये हैबिट डालोगे ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपका टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है, 23 to 25 minutes हो जाएगा, फिर 15 to 17 minutes हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल ड्रॉप डाउन टू 7 to 10 minutes. So it will come with practice. You need to solve at least 300 sets. For that वो हम करेंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेसिक्स, ये सारे बेसिक्स जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, have trust on all the guys who have scored themselves more than 99 percentile. अगर सारे एक ही बात बोलते हैं, मतलब there must be some point, ठीक है। तो let me erase the entire page first. ये ना कुछ तो प्रॉब्लम है। Erase all the ink on the slide. चलो, now the question says that
क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट देयर आर 6 बॉयज B1 to B6, B1 B2 B3 B4 B5 6 B6, and there are 6 girls G1 to G6. All of them are sitting in 2 rows facing each other. So facing each other such that each boy faces a girl. मतलब there is this arrangement. क्या है arrangement? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. So there are 12 boys and girls sitting in 2 rows such that अगर यहाँ पर boy है तो यहाँ पे girl, यहाँ पे girl है तो यहाँ पे boy. They are facing each boy faces a girl. ठीक है, each boy faces a girl. All the boys sit in one row. लफड़ा ही खत्म. मतलब सारे लड़के एक रो में बैठे हैं and all of them are facing a girl. तो सारी लड़कियां दूसरे रो में बैठी है. तो we will assume कि ये जो रो है ना, इसमें सारे बॉयज बैठे हैं और इस रो में सारी गर्ल्स. ठीक है, एंड दे आर फेसिंग ईच अदर. इसका मतलब क्या है बेटा? दे आर फेसिंग ईच अदर. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दे विल फेस ईच अदर ओनली व्हेन बॉयज लुक अप एंड द गर्ल्स लुक डाउन. देन ओनली दे विल फेस ईच अदर ना. यस, चलो लेट्स कम टू द फर्दर. इट इज नोन दैट. लेट्स कम टू द क्लूज. So the first clue says that B3 is to the immediate right of B6. Again ये up and down का क्या फंडा है? Boys के लिए ये right हो गया. अच्छा, let me name the positions as well. This is the first. अच्छा चलो जान दो positions. बहुत ही वो बहुत सारा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ऑब्जर्व करने में. तो let us assume कि understand हो, समझ लो ऐसे ही कि boys के लिए this is right, this is left. एंड गर्ल्स के लिए उल्टा हो जाता है, दिस बिकम्स राइट एंड दिस बिकम्स लेफ्ट. ठीक है, B3 is to the immediate right of B6. We don't know where is B3, but we know that B1 to B6 इस रो में बैठेंगे. ठीक है, सो B6 को यहां पे बिठाया तो B3 is immediate right of B6. इनका रिलेटिव अरेंजमेंट. अब ये दोनों कहीं भी बैठ सकते हैं. 1 2 3 5 केसेस है. ठीक है, B3 is not opposite to G3. ये यूज कर लिया हमने. कैसे यूज किया? साइड में लिख दिया है. ठीक है, B3 is not opposite to G3. ठीक है, ओके, वेरी गुड. Neither B1 nor B4 is at any end. मतलब क्या बेटा? मतलब B1 यहां पर नहीं है, B4 यहां पर नहीं है. सिमिलरली B1 यहां पर नहीं है, B4 कॉर्नर पे नहीं है. ये भी यूज कर लिया. G2 is not at right end. ओके, तो गर्ल्स के लिए ना, गर्ल्स का राइट तो इधर है, तो गर्ल्स के बॉयज के रो में दिस इज द राइट एंड, ये वाला. लेकिन गर्ल्स के रो में दिस इज द राइट एंड. तो G2 is not at the right end. तो G2 would be here. Sorry, G2 cannot be here. G2 is not at right end. रिप्रेजेंट कर दो सब कुछ डायग्राम में. रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लीनियर लॉजिकल रीजनिंग. नहीं तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड आउट करना पड़ेगा एंड दैट विल इन्वॉल्व सम टाइम. सो एंड वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन एक्चुअल एग्जामिनेशन. थर्ड, B6 इज अपोजिट टू G5. B6 तो अच्छा, B6 इधर था हमारा बेटा, पहले क्लू से आया था. तो B6 है तो B6 को अपोजिट में यू विल हैव G5. Who is to the immediate left of G2? Who मतलब कौन? Who मतलब G5 is immediate left of G2. अब गर्ल्स के लिए ना, गर्ल्स के लिए दिस इज G5 is immediate left of G2. क्योंकि गर्ल्स आर फेसिंग साउथ ना, सो G2 का immediate left is G5. So this is their relative arrangement. ये जहां भी आएंगे इसी तरीके से आएंगे. B3 के बगल में B6, B6 के ऊपर G5, G5 के बगल में G2. चलो ये भी यूज कर लिया हम लोगों ने. B2 is opposite to G1. ओके, अभी के लिए आई डोंट नो वेयर इज B2, वेयर इज G1. ग्रेट. G6 is sitting left of G3 and G1. ये क्या है? G6 is sitting. अब G6 तो गर्ल है तो ऊपर वाले रो में, तो डायरेक्शन से उल्टा हो जाएगा ना. तो मतलब G6 is left of G3 and G1. मतलब क्या? G3 G1. थोड़ा ध्यान से समझना, इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये all of them are facing south. All the girls are facing towards south.
तो G6 G3 के भी लेफ्ट में, G1 के भी लेफ्ट में है। अब G1 और G3 का रिलेटिव पोजीशन गिवन नहीं है, सो दे कुड बी इन एनी ऑर्डर। इट कुड बी G3 G1 G6 और इट कुड बी G1 G3 G6। वन मोर थिंग, क्या कि ये इनका रिलेटिव ऑर्डर है, इनके बीच में बाकी के लोग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये तीनों साथ में भी आ सकते हैं और साथ में नहीं भी आ सकते हैं। ये रिलेटिव ऑर्डर है इनका, ठीक है। आई होप एट दिस लेवल आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है इंस्टेंटली कमेंट में डालो, हम देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ देखो, इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग ना, और डोंट हेजिटेट टू आस्क, डोंट थिंक कि बाकी के लोग क्या सोचेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हर एक सिंगल स्टूडेंट की। वी आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म एवरी सिंगल स्टूडेंट। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, प्लीज कनेक्ट टू मी, कमेंट में डालो, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जैसे भी कर सकते हो, प्लीज कनेक्ट टू मी। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। चलो आगे बढ़ते बेटा, ये हो गया। B3 इज नॉट एट एनी एंड, तो ठीक है, एंड पे मेरे पास B3 भी नहीं है। G6 इज नॉट एट एनी एंड, मतलब G6 तो लड़की है ना, तो G6 भी किसी कॉर्नर पे। फाइन, तो ये मिल गया मुझे बेसिक डायग्राम, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये वाला, ठीक है। और ये जो है वो एक रैंडम थॉट है बाकी क्वेश्चन से। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने अभी तक दो स्टेटमेंट मैंने स्किप किए हैं ना। एक देखो, ये है सेकेंड हाफ, ए का सेकेंड हाफ, ये हमने यूज नहीं किया अभी तक, अंडरलाइन नहीं है। और एक सी का सेकेंड हाफ, ये भी यूज नहीं किया, अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। चलो, वो एक्चुअली हम यूज भी नहीं कर सकते। आई डोंट हैव B3 G3, आई डोंट हैव B2 G1। यहाँ पे B3 और G3 है ना, तो हम ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है। सिमिलरली B2 और G1 भी। सो दिस इज ऑल आई हैव टू प्ले विद दिस। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस। चलो आप ये देखो, ये वाला, इसका अरेंजमेंट, ये इसको फिट करने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर में, ठीक है। इस वाले पिक्चर में उसको फिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किधर फिट होता है वो। तो ये मुझे पता है B3 B6, उसके ऊपर G5, फिर G2 आते हैं। अब देखो यहाँ B3 तो बॉटम रो में, B3 का रेफरेंस लेंगे हम, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो B3 बॉटम रो में होगा कहीं, चेक करते हैं। इधर इस कॉर्नर से शुरू करते हैं, राइट कॉर्नर से। वी नो दैट B3 कैनॉट बी ओवर हियर, B3 इज नॉट हियर। सेकेंड प्लेस में B3 यहाँ पे किया अगर, तो अगर यहाँ पर B3 किया, डॉटेड दिया, अगर यहाँ B3 किया तो फिर B6 यहाँ हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका G5, यहाँ पे आएगा G2, तो कोई दिक्कत नहीं है। B6 के लिए, B3 के लिए एक ऑप्शन है ये डॉटेड वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे। पहले B3 को यहां पे पुट कर सकते हैं क्या, B3 को अगर इस डॉट पे पुट किया तो B6 यहां पर हो जाएगा, G5 इसके ऊपर और G2 इधर, ये भी चलेगा, ठीक है। अगर आपने B3 को यहां पुट किया ना, तो देखो आप B3 को यहां पुट किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, बगल में B6, उसके ऊपर G5 और उसके बगल में G2, बट यहां गिवन है कि G2 कैनॉट बी ओवर हियर, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हमें पता है कि B3 दो जगह हो सकता है, मतलब ये जो डायग्राम, ये जो अरेंजमेंट है ना, वो दो पॉसिबिलिटीज बना रहा है उसमें। तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम क्या करेंगे, एक सेकेंड पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे। आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में अगर है तो आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। यहां पे B1 नहीं, B4 नहीं, B3 नहीं, B1 नहीं, B4 नहीं, B3 नहीं, और यहां पे G2 नहीं, G6 नहीं, G6 नहीं, ठीक है। चलो, तो पहले केस में हम क्या करते हैं, B3 को इधर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, B6 हो जाएगा यहां पर, G5 हो जाएगा यहां पर, और G2 हो जाएगा यहां पर। इस वाले केस में B3 को यहां पुट कर देते हैं, तो B6 हो जाएगा यहां पर, G5 उसके ऑपोजिट, और ये हो गया मेरा G2, ठीक है। बहुत बढ़िया, होप आपको क्लियर हो रहा है। तो ये वाला हमने डेटा यूज कर लिया। अब इसको देखते हैं, G3 is to the left of G6 is to the left of G3 and G1, तो G6 के लेफ्ट में G3 और G1 आएंगे। अब G6 देखो, G6 का रेफरेंस लेते हैं। G6 यहां हो नहीं सकता, G6 को यहां पे पुट कर सकते हैं,
लेकिन G6 को यहाँ पे पुट किया तो G3 और G1 इस दोनों प्लेस पे किसी भी ऑर्डर में आएंगे, तो G6 इस प्लेस सेकंड प्लेस पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड, सॉरी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऊपर के लिए इस वाले डॉट पे। G6 को यहां नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि G3 और G1 दोनों इस साइड बिठाने पड़ेंगे, तो आई डोंट हैव टू स्पेसेस, सो एक ही केस है क्या, G6 शुड बी हियर एंड G3 G1 G6 के लेफ्ट में है, तो G3 G1 G1 और G3, और बच कौन गया, G4, G4 वुड बी हियर। सिमिलरली ऐसा कुछ आपको इसमें भी मिल जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो G6 यहां पे नहीं है, G6 को यहां पे होना पड़ेगा, और एक ही केस बनता है G3 G1 G1 G3, ठीक है। चलो, तो ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। B3 इज नॉट अपोजिट टू G3, चलो हाँ ओके, तो B3 इज नॉट अपोजिट टू G3, अगर B3 इज नॉट अपोजिट टू G3 तो B3 यहां पर है, तो G3 यहां पर नहीं होगा, G3 को यहां होना पड़ेगा, और सर ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे G3 को यहाँ पे होना पड़ेगा, इसको कर देते हैं, चलो आ जाओ, अरे यार इरेज ही करते हैं, इरेज, अच्छा ये समझ लो, दिस इज माई G3 यहां पर होगा, करेक्ट। इस वाले केस में B3 G3 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो और क्या है, ये हो गया हमारा B2 इज B3 इज नॉट एट एनी एंड, हाँ ठीक है, B3 तो एंड पे नहीं है ना, G6 इज नॉट एट, ठीक है। B2 इज अपोजिट टू G1। अब आप देखो ध्यान से, अच्छा B1 और B4 देखो कॉर्नर पे नहीं होंगे, तो B1 और B4 कॉर्नर पे नहीं होंगे, तो B1 और B4 और B1 इस जगह होंगे। सिमिलरली यहां भी B1 B4 कॉर्नर पे नहीं होंगे, तो B1 B4 ये B1 B4 कॉर्नर्स पे नहीं हो रहे। देखो सारे केसेस आपको लिखने पड़ेंगे, मैंने पहले भी बोला कि लीनियर अरेंजमेंट या लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन 10 12 15 स्टेप में सॉल्व होता है। योर प्रिजर्वेंस कम इनटू द पिक्चर, आप कितना पेशेंस रखते हो वो पिक्चर में आ जाता है। अब ये अप्लाई करेंगे, लास्ट टू जो बचा है, B2 इज अपोजिट टू G1। इस वाले केस में G1 कहाँ है मेरा, यहाँ पे बच क्या गया था मेरा, G4 हैज टू बी हियर, G1 यहां पर है, तो G1 के अपोजिट में B2 को होना चाहिए। इस वाले केस में G1 is not opposite to B2. The case is not possible. The case is eliminated. B2 is opposite to G1. इस वाले केस में G2 is opposite to, sorry, B2 is opposite to G1. B2 देखो B2 या तो इस कॉर्नर पे है, B2 या तो इस कॉर्नर पे है। इस कॉर्नर पे B2 को रखा तो हम G1 को नहीं पुट कर पाएंगे, यहाँ पे G4 ऑलरेडी है, so B2 has to be here, और इसके ऑपोजिट में G1 होना ही चाहिए। It is given in the question. So G1 यहां पर है, G1 यहां पर नहीं होगा। So this is my final arrangement. B1 और B4. We have used up all the clues and B1 B4 अभी भी figure out नहीं हुआ। So when this question has two possible solutions. Even this question has two possible solutions. क्या है solution? एक में B1 B4, दूसरे में B4 B1। जो बच गया उसको कॉर्नर पे लिख देंगे आप, जो बच गया B5 बच गया है, ठीक है। So these are two possible solutions. ये वाला केस आपका एलिमिनेट हो गया डियर। I would suggest कि आप एक बार वापस कर लो, और डाउट है तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग, फिर भी डाउट है तो इमीडिएटली कनेक्ट टू मी, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। These are the question, which of the following pair is at end? तो एंड पे क्या क्या है बेटा, एंड पे देख लो, एंड पे मेरे पास G1 है, G4 है, B2 है, B5 है, क्या क्या है, G1 है, G4 है, B2 है, B5 है। G1 G4 yes, B2 B5 yes, G1 B5 yes, all of the above should be the answer. Who is opposite to G3? G3 के opposite में G3 के opposite में B1 और B4 कोई भी हो सकता है, so B1 भी हो सकता है, B4 भी हो सकता है, so answer should be cannot be determined because दो possible answers है, एक में B1 दूसरे में B4।
लॉजिकल रीजनिंग है, आपको चक्कर देंगे, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट दिस, रीड द क्वेश्चन। देर आर 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लो, क्लूज नेक्स्ट पेज पे है। रीड दिस फर्स्ट। I'll give you 30 seconds to read this. So the question is, 7 persons, they live on a 7-story building, ground floor को first floor बोला है, and so on, and they teach different subjects from English, Hindi, economics, biology, accounts, commerce. Further it is given that ये है data. Now solve this. I'll give 5 minutes for this. सात तो भी है ना, 7 persons, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपके लिए राइट साइड में लिख लिया, सो दैट आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पेज वैसे चेंज कर देना मैंने। और बंदे हैं A to G, ठीक है। सो पीपल आर A B C D E F G। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6 and 7। I'll give you 5 minutes to solve this question. ओह सर, एक बार स्ट्रैटेजी वापस बता दीजिए। स्ट्रैटेजी, हाँ बेटा, आप एक काम करो ना, इंट्रो है मेरा पहला इंट्रो, वो आप देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं नियर फ्यूचर में ना ये सोच रहा हूँ, एक वापस एक सेशन प्लान करूँ, जहाँ पे ये मतलब एक, आई होप you guys are following Amit Surana sir and Prateek sir, both of them. तो what I'll try ना कि, and obviously Bobby ma'am for verbal, we all are a team. So now I'll try कि I sit with one of the quant faculties, let it be Amit Surana sir or it could be Pratik Ambasta sir.
So we can sit together and we can clarify your doubts together. हम दोनों एक साथ ही बैठ के आपके जो भी डाउट्स है ना वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे. When both of the faculties will sit together and possible हुआ तो दोनों भी सर को I'll try to reach out and we will sit together and आपके जो भी doubts है ना on the spot we'll try to clear and we'll try to give you the basic idea how to attempt the paper. If you guys want this kind of thing, please आप comment में डाल दो कि yes sir, we want this both of the faculties to sit together and talk directly. ठीक है. And yes, आपका कोई भी comment है ना तो leave it as a comment और आपका feedback देना definitely. Your feedback really motivates us. Let it be positive, let it be negative. कोई दिक्कत नहीं है. So please leave your feedback जो भी आपको feel हो रहा है. Let me see to which extent I can help you guys. You got one more minute. Chalo boys, now this question again was easy. Only the thing was the clues might be jumbled, they might be here and there. So we'll try to solve this question together. Most of you must have got this correct. Let's attempt the question. ठीक है. जिनको नहीं हुआ, जिनसे नहीं हुआ, they will observe it. We'll देखते हैं कैसे इस तरीके कैसे what could be a good approach to this question. So the first part of the approach is कि आपको question तो पढ़ना है अच्छे से and you have to understand the language. So one who teaches economics lives immediately below O's floor. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बिलो, अगर बिलो होता तो बीचे कहीं भी हो सकता था. सपोज ओ अगर 7 पे है तो इकोनॉमिक्स कहीं भी हो सकता था बिलो, बट इमीडिएटली बिलो दिस वर्ड हैज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस. ठीक है. इसका मतलब क्या कि इफ ओ इज हियर इकोनॉमी इज हियर. इनका रिलेटिव अरेंजमेंट हैज टू बी दिस. ठीक है. आगे बढ़ते. सो वी आर डन विद दिस स्टेटमेंट. यस, वी आर डन विद दिस. दिस एज माय फर्स्ट क्लू. पिक्चर में नहीं पुट किया बट बाहर लिखा है. P teaches accounts and lives on even numbered floor. P teaches accounts. We will write this as well. P teaches accounts and lives on even numbered floor. मतलब P is not on first, P is not on third, P is not on fifth, P is not on seventh. P is either on 2 or 4 or 6. Okay? P के बारे में और कुछ है? P के बारे में देख लो पहले फटाफट. P के बारे में कुछ भी नहीं है. अकाउंट्स है लेकिन यस. One who teaches accounts is not on 6th floor. अच्छा, P जो है अकाउंट टीच करता है तो P 6, 4 या 2 पे था. नाउ इट इज गिवन ओवर हियर कि वन हु टीचेस अकाउंट्स इज नॉट ऑन 6th फ्लोर नॉर एडजेसेंट 12. मतलब वो 6 पे नहीं है. P is either at 4 or at 2. So P is not at 6 as well. P is either at 4 or P is at 2. K lives in the middlemost. अच्छा, the positive clue. K is in the middlemost. My second one. Middlemost मतलब क्या है यहाँ पे? 4. Okay. So if K is at 4, P has to be at 2. And P teaches accounts. Great. तो accounts को कैंसिल कर देंगे. ओके, ये ABCDEFG नहीं है, सॉरी. ABCDEFG, ये ABCDEFG नहीं है. P KLMNOPQ है. दिस इज KLMNOPQ. चलो, तो आपको K मिल गया. ठीक है. किसी और क्वेश्चन का लगता है इसमें है तो, और P भी आपको मिल चुका है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट इज Q lives 3 floors above. अच्छा, we used this ना.
One who teaches accounts is not on 6th floor nor adjacent to L. One who teaches accounts is not on 6th floor, so वो तो clear है second floor पे, but this is not adjacent to L. मतलब L is not here and L is not here. हाँ, इधर लिखने में स्पेस नहीं था तो राइट में लिख दिया. N lives immediately below K and teaches biology. K है मेरे पास, तो N would be here and N would teach biology. So N भी मिल गया और biology भी मिल गया. Great. Now we can use this. Q lives 3 floors above one who teaches physics. This is my third clue I used. This is my fourth clue I used. This is going to be the fifth clue that I will use. Q lives 3 floors above. अच्छा, 3 floors above. इसका मतलब ये नहीं होता है कि 3 फ्लोर का गैप है, नहीं. थर्ड फ्लोर. That means अगर civics यहाँ पर है, civics 1 पे है, तो 3 floors above would be 2. This accounts would be 1 floor above. Biology would be 2 floor above and this K वाला would be the 3 floor above. 3 floor above का मतलब ये नहीं कि 3 फ्लोर का गैप है. Keep this in mind. ये टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको समझ के लेना होगा. So Q lives 3 floors above where civics lives. तो civics को अगर 1 पे पुट किया तो Q को 4 पे होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है. तो civics cannot be at 1. civics को 1 पे पुट किया तो 3 floor above is 4. वहां पे तो Q के लिए स्पेस है नहीं. चलो, तो सिविक्स के लिए अलग पॉसिबिलिटी देखते हैं. सिविक्स कैन बी एट 4 पे तो क्यू वुड बी एट टॉप 7. उसके ऊपर आप सिविक्स को ले नहीं जा सकते हो, क्यू को पुट नहीं कर पाओगे. सो द केस इज सिविक्स एंड क्यू. ठीक है, चलो. नीदर एम और क्यू टीच कॉमर्स. ठीक है, मेरे पास एम और क्यू कुछ भी नहीं. अच्छा, क्यू है. क्यू डज नॉट टीचेस कॉमर्स. यहां कॉमर्स नहीं होगा. ठीक है, वी यूज्ड दिस as my 6th clue. The person who teaches Hindi lives below L. Hindi lives below L. तो L यहां भी हो सकता है. ठीक, केसेस बहुत हैं. अच्छा, ये देखो ये हमने एक बना रखा है. O एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स कहां पे आएंगे साथ में? इकोनॉमिक्स यहां नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे OP की जगह O को होना चाहिए. सो एक ही केस पॉसिबल है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इकोनॉमिक्स हैज टू बी हियर एंड O हैज टू बी हियर. एक ही केस है. सो वी यूज्ड दिस. और स्टेटमेंट भी P टीचर्स अकाउंट से तो यूज कर लिया हमने बहुत पहले ही. द पर्सन हु टीचर्स हिंदी लिव्स बिलो L. नाउ L कुड बी इधर एट 5 और L कुड बी एट 1, बट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट इज क्लियर कि L के नीचे हिंदी वाला है. सो L कैनॉट बी एट 1, L हैज टू बी हियर. और हिंदी इज बिलो L, तो एक ही ऑप्शन है, हिंदी हैज टू बी हियर. अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो वी हैव गॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट M. M has to be here. ठीक है, चलो. And again here we know that commerce is not at 7, so commerce has to be here. What we are left with? Commerce गया, हिंदी गया, civics गया, eco गया. Yes, English is what we are left with. So English would be here. And that's my final arrangement. Let's move to the questions. Who owns Hindi? Who teaches Hindi? Everybody owns Hindi, but who teaches Hindi? M teaches Hindi. And नहीं, sorry, M teaches Hindi. अब कोई भी आंसर दे सकते, एक बार अरेंजमेंट हो गया तो. Pick the odd one out. O civics, O accounts. O 6 पे है, civics 4 पे है. 6 4. O accounts. O 6 पे है, accounts 2 पे है. P civics. P 2 पे है, civics 4 पे है. चौथा क्या था? P इकोनॉमी. P 2 पे है, इकोनॉमी 5 पे है. सो इनके पोजीशंस है. अब विच वन इज ऑड वन? दिख रहा होगा. पहले केस में दोनों इवन फ्लोर पे है, दूसरे केस में दोनों इवन फ्लोर पे है, तीसरे केस में दोनों भी इवन फ्लोर पे है, चौथे में एक इवन एक ऑड. सो दिस इज द डिफरेंट वन. Now, since the time is not permitting us, मैंने एक और क्वेश्चन रखा था आपका. टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क. आपको डिस्क्रिप्शन से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये पीपीटी मिल जाएगी. प्लीज डाउनलोड इट एंड प्लीज 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 वर्क हार्ड
I am requesting you guys. I want some of you guys to score very high marks so that I can use you guys to my profile. It is a give and give win and win situation for both of them. अगर आपके marks बहुत अच्छे आएंगे, I'll put my 100% into it. So if you guys score maximum possible marks, आपके लिए भी अच्छा है and it is good for me as well. ठीक है, I want my students to score marks. Please be connected. Please do this. Chalo, please work hard and take this question as your homework. Again, before going, please subscribe to our Unacademy channel. And some more benefits of Unacademy subscription is you get live classes from all the top educators of the country. You can directly interact with the educator. We have this limitation with YouTube. Live polls and live leaderboard is there. You can compare yourself with other students. टेस्ट सीरीज वगैरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह तो लगते हैं, आपको देना ही है मार्क्स, अनलिमिटेड मार्क्स आपको देने हैं. सो वी प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज एज वेल, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव. So all of these are important features. Please again what you have to do, प्ले स्टोर पे अनअकैडमी जाके टाइप करो, सर्च बॉक्स में अनअकैडमी इंस्टॉल करो. प्लीज गो टू दिस प्लस सेक्शन. दिस इज अनअकैडमी का यूजर इंटरफेस. मैनेज, इसमें आप आके कैट सिलेक्ट करो. कैट सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन. These are the packages. I already told कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये है और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये है. This is the 1 year after discount. Use my code. You'll get 10% discount and you'll get special attention from me. And this is for 2 years package. So you guys are smart. Now you need to solve few questions. My next lecture would be on circular arrangement. Would be on tomorrow 4:30 to 6. ठीक है. So what I suggest कि आप दोनों वीडियोस एक बार वापस देख के, if you are good with it, आपको क्लियर है तो solve a book. Let it be Nishit Sinha or let it be Arun Sharma. These are the standard books, but you can follow the book of your choice. You can ask me doubts from any of the books. I don't have any problem. ठीक है. चलो, having saying this, signing off. Have a great day ahead. See you tomorrow at 4:30. If you like the lecture, please hit like button.